आपका स्वागत है मनु लॉ क्लासेस में. नाउ वी आर स्टार्टिंग अ न्यू कोर्स फॉर आवर स्टूडेंट्स. वी विल बी डूइंग fortnight current affairs and we will welcome all of you to Manu Law classes. So what will we be covering in this schedule? We will cover fortnight current affairs. Along with it, I'll give you two kinds of passages. For example, as per the new CLAT pattern, whatever CLAT is asking on that pattern, you will be having 5 passages, and along with it I'll be giving you MCQs, because after every passage you have to deal with MCQs. So we will help you to deal with passages in CLAT for the GK section, and along with it we'll also help you to know about the basic understanding in and basic question solving skills for your ALET. So even if you don't have any idea how to solve a question, you will still be able to after some of elimination techniques. So this is my brief introduction. I am Vishal Kumar Sharma. I am GK faculty at Manu Law classes, and from there now we go to our first passage. So CCEA, the Cabinet Committee on Economic Affairs, has approved 3 infra projects worth rupees 7725 crores. So what is important for us? What is important for us is infrastructure. First, you will have to know the meaning of infrastructure. What is infrastructure? What is the amount that which is approved? For example, because in ALET and CLAT 2020 it was directly asked कि what was the amount for which Atmanirbhar package was announced by our Prime Minister. So you should try to remember the amount also. So the first question which comes from the passage कि what is the amount? Okay, so this is the first one. Second is greenfield industrial cities. Second is greenfield industrial cities. So now it is very important for us to know कि why it is written as greenfield industrial cities and why they haven't mentioned just industrial cities. So you should know this clearly कि what is the difference between greenfield and brownfield cities. So greenfield cities are those cities कि whenever there a foreign company, a foreign entrepreneur comes in your country and he wants to invest in your country. जब आपकी कंट्री में वो इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो पहले he tries to find कि where should I invest. For example, let's say Tesla is coming to India. We all know Tesla has come to India. Now electric cars is no more a dream in India. So when Tesla is coming to India, so what will it try to see कि yes, what sort of infrastructure I need, what sort of employees I need, what sort of lands I need, and what else is required for my company. So what will he do? He will try to find out, instead of coming and setting up a new unit, he will try to find out is there any unit readily available. If it is readily available, so why invest into a new thing instead of doing it? So he will directly approach someone and he'll say ki listen, you have the infrastructure I need for my company, so this is the amount I am willing to offer to you, and if you accept it, please give it to me. For example, it goes to Tata. He says ki Ratan bhaiya, I will need this. Ratan bhaiya says कि okay son, you can take this. So now बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, दोनों ने ये कर लिया. तो this is known as brownfield, कि existing में invest करना, no new investment. Existing में वो आए, उन्होंने सेटअप किया and they are done with it. But let's say कि यहाँ रतन भैया गुस्से में है. रतन भैया ने कहा कि नहीं दूंगा, क्योंकि अगर तुम्हें दे दिया then what will I do? My employees what will my employees be doing? क्या करेंगे वो बैठ के? तो पबजी तो खेल नहीं सकते, क्या करेंगे? तो नाउ टेस्ला विल हैव टू सेट अप अ न्यू इंडस्ट्रीज, ग्रीनफील्ड सिटीज. उनको उसी इन्वेस्टमेंट को बोलेंगे कि हर चीज़ शुरुआत से, ठीक है, बिल्कुल नए सिरे से हर चीज़ शुरू किया, ठीक है, एंड दैट इज नथिंग बट ग्रीनफील्ड सिटीज. बहुत सिंपल है. यू विल हैव टू नो दैट यू शुड रीड बिटवीन द लाइन्स. व्हेनेवर यू go and read a passage, try to mark the important words you don't know. For example, let's say greenfield is alien for me, so I have marked it red. Okay, mark it with a pencil. Whenever you are seeing it in examination, mark it with a pencil, and after that go through the passage once. Okay, connectivity to major transport corridors and all are there. Next thing, which other states where it will be done? Andhra Pradesh. I have made it bold. Okay,
Karnataka, I have marked it bold. Greater Noida, marked it bold. So which three states are there? Andhra Pradesh, Karnataka and Greater Noida, that is Uttar Pradesh. Okay, what is the main objective? The main objective is creation of greenfield industrial cities. So what are the questions that can be asked from this? Key first, which of the following has approved? Okay, which of the following has approved? So the first important term is CCEA, Cabinet Committee on Economic Affairs. Next thing कि क्या अमाउंट, कितने अमाउंट का इन्वेस्ट किया है, कितने अमाउंट का इन्वेस्ट किया है, तो अमाउंट इज इंपॉर्टेंट. सो आई हैव मार्क्ड इट with a red one कि हाँ this amount I will have to remember. Sir, how will I remember these amount? This can only be done when you keep revising it. Make small notes. ठीक है, after everything make small notes and you will be easily able to remember each and everything before your examination. Because if you try to answer these and if you try to mug up all these, you won't be able to. But if you keep practicing with question answer formats, you will be easily able to remember, and that's a promise. अदर थिंग, ग्रीन फील्ड बता दिया. नेक्स्ट थिंग अब इंपॉर्टेंट नहीं है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं. नेक्स्ट थिंग, कैबिनेट कमिटीज. हाउ? बिकॉज द वर्ड हेयर मेंशंस कैबिनेट कमिटी. द वर्ड हेयर मेंशंस कैबिनेट कमिटी. सो हाउ इज कैबिनेट कमिटी इंपॉर्टेंट टू अस? कैबिनेट कमिटी, they can ask you a questions from the word cabinet committee also. Okay, what are cabinet committees? Do they find they mentioned, are they mentioned in the constitution? The answer is no. So they are extra constitutional in emergence. They are not mentioned in the constitution. This is the first fact. ठीक है, which of the following provides for the establishment? Four options are there. Answer, rules of business provide for their establishment. Okay, तो इन इंडिया में एग्जीक्यूटिव जो है ये काम करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 के अंदर. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. और सबसे बड़ी बात है, याद रखने की चीज है, आप सबको ये याद रखना पड़ेगा कि जितनी भी कमिटी है इंडिया में, ठीक है, जितनी भी कैबिनेट कमिटी है एक्सेप्ट कैबिनेट कमिटी ऑन अकोमोडेशन एंड कैबिनेट कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, इन सभी कमिटीज, ऑल दीज कमिटीज आर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ठीक है, एक्स ऑफिशियो. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है. हम लोगों को समझ में आया कि रीड बिटवीन द लाइंस, माने लाइंस के बीच में पढ़ने से ये वर्ड इंपॉर्टेंट है. कैबिनेट कमिटी, फॉर एग्जांपल ग्रीन फील्ड. ठीक है, वॉट एवर द अमाउंट इज रिटन, दे मे आस्क यू दीज थिंग्स. इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर देयर? दे विल मेंशन द 4 states and they will say ki which of the following state does not find its mentions or will not get investment under the scheme approved by the CCEA. In that, let's say they have given 4 options: Andhra Pradesh, Karnataka, Uttar Pradesh and Bihar. So the answer will be Bihar. ये सब क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल हैं. ये आपको तभी आएंगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ऐसा नहीं है कि रात में सपना देखा सुबह उठे तो आपका काम कंप्लीट. सो दिस इज द फैक्ट. ओके, now we'll move to the next one. Advantages. What are the advantages? First thing, promote exports. क्यों? Because India, हम बार बार कह रहे हैं कि हमें आत्मनिर्भर बनना है. We want to be आत्मनिर्भर. So what does it mean? So from being a import oriented country to being a export oriented country, what do we want? We want to be a export oriented country. ठीक है, what will be what are the benefits of industrial corridors? फर्स्ट थिंग, आपका लॉजिस्टिक कॉस्ट नीचे जाते हैं बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग इज सेटअप इन दैट कॉरिडोर. सो लॉजिस्टिक कॉस्ट गो डाउन. ओके, जब लॉजिस्टिक कॉस्ट आपका कम हुआ तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन COP गोज डाउन. ओके, एंड लास्ट में व्हाट आर द बेनिफिट्स कि व्हेन योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लेस, you end up making your goods more competitive in the European markets, in the foreign markets. Your goods become more competitive. They become more competitive in the international markets. So this is one benefit. Another, it creates job opportunities. More are the investments, more infrastructure, more labor is needed, so more jobs. Another, logistics. The necessary logistics infrastructure is provided by the industrial corridors, so it is also a benefit because good logistics facility are there. If the logistics are good, the company will not only save time but also save money, also save labor,
and will end up getting its cost of production decreased. So this is also a benefit. Next thing, investment opportunities are there. For example, let's say कि if 10 companies are there, okay, let's say I will take example of नोएडा. ठीक है, नोएडा में हम जाते हैं, मैंने देखा कि वहाँ 10 कंपनीज हैं, वहाँ एम्प्लॉय काम करती हैं. तो उन एम्प्लॉयज़ को व्हाट द एम्प्लॉयज़ विल नीड कि इन टिफिन टाइम दे नीड चाय. ठीक है, ऑल लव चाय. आई थिंक सभी को चाय चाहिए, कॉफ़ी चाहिए. दोपहर है, छुट्टी मिली, लंच टाइम है, दे विल नीड फूड ऑल्सो. सो दीज आर इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़. दीज आर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़. पीपल आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी फार प्लेस. सो व्हाट, तो वहाँ पे रियल स्टेट की अपॉर्चुनिटीज़ की वी विल प्रोवाइड देम होम ऑन रेंट, ये भी एक अच्छा है. तो वहाँ पे वी विल स्टार्ट मेकिंग रेसिडेंशियल कॉलोनीज. दिस इज ऑल्सो अ फैक्ट. तो नोएडा, आज आप देख रहे हैं कि नोएडा में दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं. दीज आर द रीजन. इम्प्रूव फंक्शनिंग. फंक्शनिंग कैसे इम्प्रूव होती है? क्योंकि एक्सेस आसान हो जाता है. when the access is made easier, the transportation and communication costs automatically go down. ठीक है, the delivery time also goes down. रिडक्शन इन इन्वेंट्री कॉस्ट. इन्वेंट्री मीन्स अगर आपका सामान जल्दी पहुंच जा रहा है, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक. ठीक है, तो स्टॉक कहाँ रखेंगे? वॉट एवर स्टॉक इज नीडेड वी विल कीप इट इन द फैक्ट्री. सो इफ यू कीप एनीथिंग इन द फैक्ट्री यू विल हैव टू पे रेंट ऑल्सो. सो व्हेन द डिलीवरी इज फास्टर you will end up saving that rent also. So these are the economic benefits. Next thing, what are the environmental? कि जब भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर सेटअप होते हैं तो ऐसा नहीं है कि सारी कंपनी एक जगह इकट्ठा हो गई, नहीं, दे आर प्लेस्ड एट डिफरेंट प्लेसेस. ठीक है, तो मान लो कि यहाँ कोका कोला कंपनी खुली. लेट्स से कि वहाँ कोका कोला कंपनी खुली और कोका कोला कंपनी वी नो अच्छे से अपने को पता है कि हमें 1 लीटर कोका कोला के लिए कम से कम 3 लीटर पानी की ज़रूरत होती है. अब वहीं पे बगल में पेप्सी भी आके खुल जाए तो फिर फ़ायदा क्या होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा. तो क्यों? क्योंकि फ़ायदा इसलिए नहीं होगा क्योंकि ज़्यादा पानी वेस्ट होगा. अब एक ही जगह से आप कंटिन्यू पानी ले रहे हो तो वहाँ का पानी लास्ट में सूख जाएगा. ऐसा नहीं है कि हाँ द्रौपदी का भोजन वाला है जो कभी ख़त्म नहीं होता. हर चीज़ लिमिटेड है इस धरती पे, हर चीज़ लिमिटेड है, वो आज न कल ख़त्म हो जाएगी. नेचुरल रिसोर्सेज को अगर हम ओवर यूज़ करेंगे तो हम लोग सफ़र करेंगे. तो यहाँ पे क्या ध्यान में रखते हैं हम लोग कि उनको एक स्कैटर्ड मैनर में रखा जाता है ताकि सारा कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एक इकट्ठा लोकेशन में नहीं हो. ठीक है, ये एक फ़ायदा. उसके बाद अपने कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा हम एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे. इससे क्या होगा? एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन नहीं होगा. आई होप आई एम क्लियर टू एवरीवन. सो सोशियो इकोनॉमिक फ़ायदे भी हैं, कुछ सोसाइटल फ़ायदे भी हैं. हमने देखा कि देयर वाज अ ग्रेट लॉकडाउन. ठीक है, 2020 नो वन कैन फॉरगेट कि व्हाट अ ग्रेट ईयर इट वाज. ठीक, देयर वाज अ केस ऑफ लॉकडाउन. सो व्हाट हैपेंड कि ऑल द जितने भी मजदूर थे ये सब घर की तरफ लौटने लगे. ठीक है, कारण क्या था? बिकॉज दे डिडंट हैड मनी इवन सर्वाइव फॉर द नेक्स्ट 10 days. सो दिस इज द सिचुएशन हियर. व्हाई डू वी लीव आवर होम एंड गो टू अ फॉरेन सिटी? क्यों जाते हैं हम? वी ओनली डू दैट टू अर्न मनी. बिकॉज if we won't earn money we can't educate our students, we don't have the money to eat the food and we will die. ठीक है, भूख से मर जाएंगे अगर पढ़ेंगे नहीं. सभी को मन होता है कि हम अमीर बने, किसको मन नहीं होता कि अमीर नहीं बने? ठीक है, लेकिन अमीर बनने की चाहत में एटलीस्ट उनको अपना घर छोड़ना पड़ता है. तो ये लोग जब बाहर रहते हैं तो सबसे बड़ी बात है इसीलिए आते हैं क्योंकि उनके वहाँ पे जॉब्स नहीं है. अगर ये जॉब्स उनको वहाँ प्रोवाइड की जाएँ तो अल्टीमेटली नो माइग्रेशन विल हैपन. कोई माइग्रेशन नहीं होगा, डिस्ट्रेस माइग्रेशन नहीं होगा, कोई ऐसे पैदल घर की ओर नहीं जाएगा. ठीक है, तो ये एक सिचुएशन है. इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स. ठीक है, कैसे कहते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगी. फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं आपको बताता हूँ कि मानिए कि आपके गांव के पास एक फैक्ट्री सेटअप हो गई. ठीक है, फैक्ट्री सेटअप हो गई तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आप ही के गाँव के लोग रहेंगे, दूसरे के गाँव के लोग भी आएंगे, दूसरे गाँव के लोग भी वो भी आएंगे, दे विल ऑल्सो लिव. ठीक है, what they will need accommodation, they will need house, they will need food. तो सब आप ही के यहाँ से लेंगे तो आपका फ़ायदा, आपके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं. नंबर 1, वो आएंगे, उनके बच्चे पढ़ेंगे, नाउ यू आर ऑल्सो अर्निंग. ठीक है, फैक्ट्री आई तो आपके पास क्या आया?
आपके पास पैसा आए, जब आपके पास पैसा आएगा तो आप जब कमाएंगे तो आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, बिकॉज कोई भी बाप ये नहीं चाहता कि अगर उसका बेटा मजदूर है तो उसका बाप मजदूर है तो बेटा भी मजदूर हो। तो दिस इज द केस। सो व्हाट हैपेंस कि वहां अच्छे अच्छे स्कूल्स खुलेंगे, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, अगेन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। जब भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज होगी, जहां पे भी लाइफ है वहां लोग बीमार पड़ेंगे। कोई ऐसा अमृत खा के पैदा नहीं हुआ कि वो मरे ही नहीं, ठीक है, तो बीमार पड़ना संभव है, ठीक है, तो हॉस्पिटल्स आर नीडेड, डॉक्टर्स आर नीडेड, तो ये अल्टीमेटली आपका ह्यूमन डेवलपमेंट होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपकी बढ़ेगी। ना केवल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो भी बढ़ेगी, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट कम हो जाएगी, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कम हो जाएगी, क्योंकि अच्छी सुविधा मिलेगी, माँ को अच्छी मिलेगी सुविधा, बच्चों को अल्टीमेटली, तो वी विल एंड अप डूइंग गुड। ठीक है, ये अगला पैसेज है वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के ऊपर। मैं चाहता हूं आप लोग खुद ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में हम लोगों को आंसर दें कि हाँ इसमें आप लोगों को क्या समझ में नहीं आया। उसके बाद डॉक्टर हर्षवर्धन इनॉग्रेट्स CEPI सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क लैब एट DBT THSTI फरीदाबाद वर्चुअली। देखिए इससे एक MCQ पॉसिबल है क्या, कि ये नाम क्यों इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन नाम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डॉक्टर हर्षवर्धन जो हैं हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम डॉक्टर हर्षवर्धन का नाम रखें। तो कौन सी मिनिस्ट्री में है, पहला नंबर ये क्वेश्चन बनता है। उसके बाद और वो अभी क्या है, हाल फिलहाल उनको WHO में कुछ पद मिला है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए कि कौन से पद पे पहुंचे हैं डॉक्टर हर्षवर्धन WHO में। इंडिया के लिए काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है। आई होप सबको आंसर पता होगा, अगर नहीं तो हम आंसर बताएंगे। ठीक, उसके बाद 7 labs of the world inaugurated, one of the 7 labs of the world called as centralized network lab of coalition for epidemic preparedness innovations। ऐसे दुनिया में केवल 7 ही लैब हैं और ये लैब उनमें से एक है। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो 7 लैब है इन लोगों में ये क्या करते हैं, ये लैब क्या करती हैं, ये रिसर्च करती हैं कि कोई भी एपिडेमिक, कोई भी आपदा विपदा आने वाली है, कोई भी ऐसी बीमारी आने वाली है, तो ये मेंटेन करते हैं कि हाँ उस पर रिसर्च करें और उसके लिए वैक्सीनेशन रेडी रखें। ठीक है, ये ट्राई करते हैं कि ऐसी किसी भी बीमारी को हटाया जा सके। इसमें वर्ड अपने लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, एपिडेमिक, मार्क कर लीजिए इसको, एपिडेमिक। ठीक है, एक चीज़ और THSTI, ठीक है, फरीदाबाद, ये इंस्टीट्यूट किसके अंदर है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। 2 क्वेश्चन हो गए, पहला कि हेल्थ मिनिस्टर आपका कौन है, नंबर 1, नंबर 2 वो WHO में कौन से पद पे गए हैं। ये भी एक क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट हैज हर्षवर्धन रीच्ड इन WHO, सो दिस कैन बी ऑल्सो द क्वेश्चन। एंड द नेक्स्ट वन कि THSTI इज एन इंस्टीट्यूट अंडर 4 ऑप्शंस आर देयर, फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ऑल दीज ऑप्शंस मे बी देयर और आपको उनमें से चारों में से एक ऑप्शन सही ऑप्शन बताना है। तो दिस कैन बी डन व्हेन यू रीड द पैसेज। व्हाई करंट अफेयर्स एंड व्हाई डेली न्यूज इज रेडी, व्हाई इज इट नेसेसरी टू रीड न्यूज़पेपर्स, बिकॉज अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे यू विल मिस दिस पैसेज। आप जहाँ से ज़्यादा कहीं से जाएंगे तो एक क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिल जाएगा कि हर्षवर्धन कौन से हैं पोर्टफोलियो उनके पास है, तो आप ये सॉल्व कर पाओगे। लेकिन ये चीज़ आपको नहीं पता है, ये चीज़ आपको नहीं पता है। ठीक है, तो ये 7 लैब्स है वर्ल्ड का, तो ये एक अच्छी चीज़ है। दूसरा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। कब फाउंड हुआ था, मई 1971। हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली है। मिनिस्टर कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, अगला पैंडेमिक क्या होता है। ठीक है, क्या होता है पैंडेमिक, क्या होता है एपिडेमिक। सर पैंडेमिक वर्ड अभी बार बार सुन रहे हैं कोरोना के कारण। एपिडेमिक क्या है कि एपिडेमिक एक, मान लीजिए कि पैंडेमिक का छोटा वर्जन है। फॉर एग्जांपल एपिडेमिक क्या है, जीका वायरस। ठीक है, जीका वायरस एग्जांपल ले लेते हैं, जीका वायरस। व्हाट इज जीका वायरस, ये अफ्रीका में एक जगह आया, एबोला अफ्रीका में एक जगह आया, वहाँ पे हुआ, वहाँ से एक से दूसरा जगह गया, दूसरे से तीसरा जगह गया, लेकिन और थोड़े शॉर्ट टर्म में ये काफ़ी फैला और इसकी जो मारक क्षमता है, जो इसकी किलिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन क्या ये पूरे वर्ल्ड में फैला, नहीं।
तो ये पैंडेमिक का छोटा वर्जन है, छोटा भाई है उसका पैंडेमिक का। पैंडेमिक क्या हुआ कि ये वर्ल्ड वाइड फैल गया, ठीक है। एपिडेमिक जब कुछ, फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस चाइना में निकला, चाइना में सिमट के रह जाता या अगल बगल इंडिया पाकिस्तान में रह जाता जो उसके नेबरिंग कंट्रीज हैं, तो ये एपिडेमिक के कैटेगरी में आता। मगर कोरोना वायरस को हमने क्या देखा कि इट स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है। कोरोना वायरस स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, सो वी हैव टू नो एंड कि ये पैंडेमिक है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ न्यू डिजीज, ठीक है। पैंडेमिक क्या है, लार्जर वर्जन ऑफ एपिडेमिक। अदर वर्ड्स में कि जब एपिडेमिक आउट ऑफ ऑर्डर हो जाए तो उसको पैंडेमिक कहते हैं, ठीक है। यही कहानी दी गई है यहाँ पे। अगला बर्ड फ्लू, ठीक है, काफी चर्चे में है। जो भी चिकन मटन खाते हैं आप लोग कृपया करके कुछ दिन रुक जाएं, क्योंकि चिकन अगर आप खाएंगे तो हो सकता है, ये काफ़ी पॉसिबिलिटी है और एटलीस्ट 30% प्रोबेबिलिटी है कि आपको बर्ड फ्लू हो सकता है, ठीक है। बर्ड फ्लू क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। बर्ड फ्लू को एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं, बर्ड फ्लू को एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं। और क्योंकि ये 4-5 से ज़्यादा स्टेट, केरला, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र, बहुत सारी जगहों में आया, इस कारण हाई अलर्ट घोषित किया गया है, ठीक है। कि बर्ड फ्लू के केसेस कंफर्म हुए हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टेट हैं जो रिपोर्ट कर रहे हैं कि वहाँ पे चिड़िया मर रही हैं। दिल्ली में जैसे बहुत सारे कौवे मर गए, ठीक है। जो पार्क हैं वहाँ पे बहुत सारी डक्स मर गए। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि ये जो है, ठीक है, ये बर्ड फ्लू किस कारण से होता है, क्या ये ट्रांसमिसिबल है, ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, क्या वैक्सीन उपलब्ध है, हमें बस इतना ही जानना है एग्जाम के लिए। अगर डेली इस पे न्यूज़ भी आए तो हम डेली इसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। पहला बर्ड फ्लू कहाँ पाया गया था, चाइना में, गीज में। याद रखिए कि ज़्यादातर बीमारी चाइना से ही निकल के आ रही हैं, हमें बार बार देख रहे हैं। क्यों हो रहा है देखते हैं आगे, कुछ ना कुछ तो कारण होगा। इंडिया में कहाँ पाया गया था, महाराष्ट्र के नान दरबार में, ठीक है। ह्यूमन ट्रांसमिशन, हाँ पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, क्योंकि ये जंप कर सकता है स्पीसीज, और ह्यूमंस अगर उस इन्फेक्टेड बर्ड के पास रहेंगे या उसको खाएंगे तो ये हो सकता है। तो भाइयों बहनों, जो भी चिकन मटन खा रहे हैं कृपया कुछ दिन रुक जाएं। अगर चिकन खाते हैं, बहुत ज़्यादा मन है तो मटन पे शिफ्ट कर जाएं, और हो सकता है तो फिश खाने लगें, ठीक। छोड़ना मुश्किल है मुझे पता है, बट कुछ दिन के लिए कंट्रोल करें। H5N1 ये इन्फेक्शन ह्यूमंस में पॉसिबल है। पहला केस कहाँ आया था, पहला केस हांगकांग में आया था। कब आया था सर, 1997 में आया था। क्या एग्जाम मेरे से इससे ज़्यादा पूछेगा, नहीं पूछेगा। ह्यूमन टू ह्यूमन इन्फेक्शन अभी तक मालूम नहीं चला है, तो नहीं जानेंगे इसके अलावा। और अब देखते हैं कि चाइना में क्यों, क्योंकि वो किसी भी जीव को ढंग से पकाते नहीं हैं। हमारे यहाँ अगर आलू भी पकाया जाता है तो उसको भी हम लोग आधे घंटे कम से कम गरम गरम माने जला के खाते हैं, बढ़िया से उसको पका के खाते हैं। तो हम अपने खाना को प्रॉपर पका के खाते हैं। ये बर्ड फ्लू का जो वायरस है, अगर उसको 70 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के ऊपर अगर हमने एक्सपोज किया तो ऑटोमेटिकली वायरस मर जाता है। तो इंडिया में जो बर्ड फ्लू के होने के चांसेस हैं वो बहुत कम है, ठीक है। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में क्यों ज़्यादा है, क्योंकि उनके खाने के तरीके से वो कच्चा पकड़ा सी फूड और डायरेक्ट मुंह में रख लिया, चबा के खा गए। हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ आप खा के पचा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बचपन से आदत आपको नहीं है, सिंपल। अगला, ये एक काफ़ी अच्छा टॉपिक है और ये पिछले 15 दिनों में सबसे ज़्यादा डिबेटेबल टॉपिक है, ठीक है। इसका नाम है पार्टी का, कमल हासन की पार्टी है, पार्टी का नाम है मक्कल निधि मय्यम। क्या किया है इन लोगों ने, इन लोगों ने हाउस वाइफ को क्या किया है, कहा है कि हम आपको सैलरी देंगे अगर हम पावर में आते हैं, ठीक है। तो क्यों इंपॉर्टेंट हो गया इसका, हाउस वाइफ को सैलरी देने की क्या ज़रूरत है, अल्टीमेटली तो घर ही तो हैं, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, ये एक बहुत अच्छा आइडिया है जो इन्होंने दिया है, ठीक। आजकल ये बहुत टॉपिक में रहा है, हर वक्त डिबेटेबल टॉपिक रहा है कि हाउसवाइफ जो घर में काम करती हैं क्या उसका कोई हम काउंट रखते हैं। आंसर है नहीं, ठीक है। सेम टाइम पे जो काम आपकी माँ, बहनें, जो भी घर पे औरतें हैं वो करती हैं, तो उस वक्त पे क्या उसका कोई काउंट होता है। आंसर इज़ नो। वाई, बिकॉज हम उनको पेमेंट नहीं देते हैं किसी चीज़ की, ना वो जीडीपी में काउंट होता है, ना उनको कोई इनकम मिलता है। तो अल्टीमेटली उनका जो काम होता है वो अनकाउंटेड चला जाता है। इसीलिए टाइटल का नाम है वैल्यू ऑफ अनपेड डोमेस्टिक वर्क।
कि ऐसा काम कर रहे हैं जिसके लिए आपको तनख्वाह ही नहीं मिल रही है। आपको कोई कहे कि दिन भर जाके कहीं पे रोड बनाओ, उसमें मिट्टी ढो और जाके ईंटें बिछाओ, और शाम में कहे कि सुनो ये अनपेड था, तो आपका तो मूड ही खराब हो जाएगा। तो ये सोचिए कि आपकी माँ बहनें डेली, आपकी बीवी पत्नी, हर कोई इससे डेली गुजरता है एक बार। तो इस चीज़ को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि ये क्यों कहा है, क्योंकि ये विमेन एम्पावरमेंट और इक्वालिटी लाने के लिए समाज में बहुत ज़रूरी है कि हम इस काम को रिकग्नाइज करना शुरू करें। क्योंकि जो बच्चे अकेले रहते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं, और जहाँ पे अकेले रूम लेके रहते हैं, वहाँ उनके लिए हाउसमेट्स आती हैं, खाना बनाती हैं, बर्तन धोती हैं, कपड़ा साफ करती हैं, हर एक चीज़ का पैसा लेके जाती हैं। ठीक है, तो आपको ये मालूम रहना चाहिए कि उस काम के पैसे मिलने चाहिए आपकी माओं को, बहनों को। इसीलिए कमल हासन की पार्टी ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है। क्वेश्चन क्या बनेगा आपके लिए एग्जाम में कि कमल हासन कौन सी पार्टी के, या कमल हासन कौन सी पार्टी को बिलोंग करते हैं। 4 ऑप्शन आर देयर। फॉर एग्जाम्पल ए बीजेपी, बी आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, सी दे दिया डीएमके, और 4 दे दिया एमकेएम, मक्कल एमएनएम, मक्कल निधि मय्यम। ठीक है, और इसका आंसर है मक्कल निधि मय्यम। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनदर थिंग, इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छा टॉपिक है और हो सकता है क्लैट में इससे डायरेक्ट पैसेज आ जाए। ठीक है, जब भी ऐसी चीज़ें हम देखेंगे जिसमें हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलता है तो हम वैसे टॉपिक्स पे ज़रूर काम करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल वेजेस फॉर हाउस वर्क कैंपेन जो सेल्मा जेम्स ने बनाया था 1972 में, इसने 1972 से आवाज़ उठाई थी कि यस वी नीड टू बी पेड, वी नीड टू गेट पेड। ठीक है, उन्होंने कहा था। उसके बाद सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस हुई हैं वेस्ट में, फॉर एग्जांपल यूके, यूएस, कनाडा, इटली, फ्रांस। दे हैव रेज सिमिलर रिक्वेस्ट बट दे वेयर डिनाइड। एनएसओ की एक सर्वे के अनुसार, एनएसओ सर्वे कंडक्टेड बाय एनएसओ सेड दैट कि men only spend only 1.5 hour of their day in unpaid domestic work, and on the opposite women do it for every day for 5 hours per day. Even if a woman is a working woman, doesn't matter, she ends up spending work in this unpaid domestic work. She ends up spending her time. तो ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या होता है ये, इस काम का वैल्यू। ये सभी के साथ हो सकता है और सभी के घर पे होता है, तो अब समय आ गया है कि हम इसको रिकग्नाइज करें। ठीक है, अब क्योंकि इसमें वर्ड था कि सभी को एक पैसे जैसा, तो एक इससे मिलता जुलता जो बार बार हम न्यूज़ में देखते हैं, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। इसके बारे में आपको कुछ बताते हैं कि क्या है यूनिवर्सल बेसिक इनकम। सबसे पहले मेंशन हुआ था इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया में। ठीक है, इन्होंने 2016-17 में इसको मेंशन किया था। ठीक है, आइडिया क्या था कि हर पर्सन को एक बेसिक इनकम का अधिकार है, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो हमारे देश का हिस्सा है। पर्पस क्या था, ताकि पॉवर्टी को, गरीबी को दूर किया जा सके एंड टू इंक्रीज इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स। द मेन पर्पस वाज दैट ओनली। कंपोनेंट्स क्या क्या हैं आइए देख लेते हैं। 5 यूनिवर्सल, सभी को मिलना है, किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। तो यूनिवर्सल इन नेचर, पीरियोडिक, हर महीने पेमेंट दी जाएगी। पेमेंट डायरेक्टली आपके अकाउंट में आएगी, इसलिए पेमेंट टू इंडिविजुअल्स। पेमेंट इन कैश, कैश मतलब जरूरी नहीं कि हाथ में हो, डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में भी आएगी। ऐसा नहीं कि मोदी जी डायरेक्ट आपके हाथ में देने आएंगे कि ये लीजिए भैया आपका पेमेंट। ठीक है, अनकंडीशनल, डजेंट मैटर आप गरीब हो, अमीर हो, भिखारी हो, कुछ भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, डजेंट मैटर, ये अनकंडीशनल है। आपको ये पेमेंट मिलेगी जस्ट बिकॉज यू बिलोंग टू दिस कंट्री। बेनिफिट क्या क्या है आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला, प्रवासी भारतीय दिवस काफी इंपॉर्टेंट है। अभी अभी 9 जनवरी गया है। ठीक है, 9 जनवरी, हर 2 साल पे अब हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर स्टेटमेंट में रहा कि प्रवासी भारतीय दिवस इज सेलिब्रेटेड एनुअली, ठीक है, अगर आंसर नन ऑफ द अबव रहा तो नन ऑफ द अबव करके आइएगा, क्योंकि अब ये बाई एनुअल हो गया है, हर 2 साल पे मनाया जाता है। ठीक है, हाफ ईयरली भी नहीं है, ईयरली भी नहीं है, हर 2 साल पे मनाया जाता है। पहले होता था 2015 तक ये एनुअल मनाया जाता था, लेकिन अब इसे हर 2 साल पे मनाया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट थीम क्या है सर इस साल का, कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। देखिए बार बार आत्मनिर्भर भारत की बात की जा रही है, इसीलिए पहला जो स्लाइड हमने पढ़ा वही देख रहे थे कि वो भी आपको एक तरह से आत्मनिर्भर बनने की ओर प्रेरित कर रहा है। आत्मनिर्भर बनने का ये मतलब नहीं है कि हम वर्ल्ड से कुछ एक्सपोर्ट ही करना बंद कर देंगे, हम सारा कुछ खुद बनाएंगे, नहीं। आत्मनिर्भर बनने का ये मतलब हुआ
कि हम अपने एक्सपोर्ट्स को कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, क्योंकि एक्सपोर्ट्स जब आप ज़्यादा करते हैं तो आपके पास फॉरेन करेंसी ज़्यादा आती है, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो एक्सपोर्टर है वो भी खुश, आपकी कंट्री के लिए भी फायदा, ठीक है, कि उनका जो भी फॉरेन ये है करेंसी का जो स्टॉक है वो बढ़ता है। इससे क्या होती है, आपकी जीडीपी स्ट्रांग होती है, ठीक है, जीडीपी स्ट्रांग होती है। उसके बाद आरबीआई के पास ज्यादा अथॉरिटी कि वो ज्यादा कैश छाप सकती है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, डिमांड बढ़ेगी, मार्केट में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, जॉब्स ज्यादा होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज्यादा होगी, जीडीपी ज्यादा बढ़ेगी, जीडीपी जब ज्यादा बढ़ेगी अल्टीमेटली आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी। तो देखिए ये पूरा एक साइकिल है, ऐसा नहीं है कि ये हर चीज यहाँ पे एक दूसरे को अफेक्ट कर रही है, और इकोनॉमी में तो हर चीज एक दूसरे को अफेक्ट करती ही है। तो आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगला प्रवासी भारतीय दिवस हो गया। अब इस पे आते हैं, कौन है चीफ गेस्ट। ये आपसे बार बार पूछा जाता है कि चीफ गेस्ट कौन है, बहुत बार पूछा गया है, याद रखिए। इस बार सूरीनाम के प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी, चंद्रिका प्रसाद संतोखी सूरीनाम के जो प्रेसिडेंट है, ही वॉज आवर चीफ गेस्ट ऑन दिस प्रवासी भारतीय दिवस। सर वॉज क्या वो इंडिया आए थे, डिड ही कम टू इंडिया, नो इट वॉज डन वर्चुअली, ओके। अच्छा, what are the benefits of inviting these guests? Because we need to improve on our soft power, ठीक है। We have a very good Indian diaspora in foreign, so we need to attract them also, because attracting them gives us a good chance of creating a voice, ठीक है, on international level, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने कहा कि अब हम वीज़ा फ्री करेंगे दोनों कंट्री के बीच में ट्रैवल, और इससे क्या होगा कि दोनों कंट्रीज में टूरिस्ट का अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, दोनों कंट्री के रिश्ते अच्छे होंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितना फ़ायदा है। अगला प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड के बारे में जानते हैं। जो भी एनआरआई होता है उसको ये दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। जैसे भारत में भारत रत्न किसी को मिले तो वो इंडिया में जैसे सबसे बड़ा सम्मान है, वैसे ही प्रवासी के वर्ड के बारे में जानते हैं। क्या होता है प्रवासी, व्हाट इज प्रवासी। कोई अगर यहां रहने वाला है उसको कहते हैं यहां का निवासी, जो यहां नहीं रहते हैं उसको कहते हैं प्रवासी। तो ये मतलब जान लीजिए, ठीक है। किसी भी नॉन रेसिडेंट इंडियन को दिए जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड, सिंपल, ये है कहानी इसकी। अगला, क्यों मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को इस धरती का, ठीक है, मैं इंडिया नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ऑन दिस अर्थ the greatest lawyer ever arrived. All of you dream to go in a good law school, dream to become great advocates, but the greatest lawyer, if you see his advocation history, you will see कि he was not that successful in courts, but when you will see कि हाँ जो दलील उसने अंग्रेजों के सामने पेश की, आज वही कारण है कि हम इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है, हम आज़ाद हैं। और उनका नाम था, ठीक है, जो ग्रेटेस्ट प्रवासी थे उनका नाम था हमारे प्यारे बापू महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी। तो हम उन्हीं के यहाँ वापस लौटने की खुशी में प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। कब से मनाए रहे हैं हम इसको? 2003 से। 2015 से क्या किया गया कि ये हर 2 साल पे कर दिया गया। यही सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ठीक है। अब हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे एलिट पैटर्न पे, और बस आप कोशिश कीजिए कि कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा आंसर करें, ताकि आपको ये लाइव आपको डायरेक्टली पता चलेगा कि एग्जाम में कैसे आपसे सवाल पूछा जाएगा। हम उसी पैटर्न पे आपसे सवाल पूछेंगे। रिसेंटली इनमें से किसी को तानसेन सम्मान 2020 अवार्ड से नवाजा गया है? जल्दी बताइए आंसर आप लोग। आंसर है सतीश व्यास, ठीक है। क्या करते हैं ये संतूर प्लेयर हैं, ये संतूर प्लेयर हैं जिनको ऑनर किया गया है तानसेन सम्मान अवार्ड हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के लिए, ठीक है। कौन सी गवर्नमेंट देती है अवार्ड? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ये अवार्ड देती है, ठीक है। तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल कहां होता है? ये ग्वालियर में होता है, मध्य प्रदेश, ठीक है, हेल्ड एनुअली इन ग्वालियर, ठीक है। ये देखिए यहां जो भी वर्ड्स हमें दिख रहे हैं, हम इनको क्या करेंगे, घराना, ध्रुपद, ये वर्ड्स हमें क्या रखें, हमें एलियन लगे कि सर यहाँ पे अचानक से संतूर से हम घराने पे कैसे आ गए।
अब जानते हैं कुछ कुछ क्लासिकल म्यूजिक के बारे में, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। तो क्या है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक? इंडियन क्लासिकल म्यूजिक दो इसमें बटा, दो कंपोनेंट्स इसके, एक हिंदुस्तानी और एक है कार्नेटिक। ठीक, एक हिंदुस्तानी एक कार्नेटिक। अब हिंदुस्तानी में जो डिफरेंट है, ठीक है, ये दोनों भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में इनका वर्णन मिलता है। 14वीं शताब्दी, फ्रॉम 14th सेंचुरी दे डाइवर्स। हिंदुस्तानी में एक्सपोनेंट्स आ गए, जैसे तानसेन जो नवरत्नों में से एक थे अकबर के, तानसेन, और वेरियस एक्सपोनेंट्स आ गए। ठीक है, जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने इस म्यूजिक को और आगे बढ़ाया। हिंदुस्तानी म्यूजिक में आप इम्प्रोवाइज कर सकते हो, उस म्यूजिक में नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसके डिफरेंट स्टाइल्स हैं, जिसमें आता है ध्रुपद, धम्मड़ एटसेट्रा। ठीक है सर, घराना क्या है? घराना हम कह सकते हैं एक हॉस्टल की तरह मान लेते हैं, जहाँ पे एक आदमी जाता है, वहाँ ये सारे कंपोनेंट्स जो भी, मान लीजिए कि कोई क्लासिकल म्यूजिक में कोई गज़ल का सीख रहा है, तो जितने भी गज़ल वादक हैं सब एक जगह इकट्ठा होंगे, और जो जहाँ पे वो लोग रियाज करते हैं उस जगह को हम घराना कहते हैं। ठीक है, घराना में गुरु शिष्य की परंपरा होती है। गुरु शिष्य की परंपरा कि गुरु शिष्य को शिक्षा देता है कि हमें कैसे कैसे क्या क्या करना है। ये एक पासिंग द पार्सल टाइप का है कि हमने कर लिया, अब हम जो ये बेटन है ये तुम्हें देते हैं, तुम अपने बाद किसी और को देना। ठीक है, 3 इडियट्स में रैंचो का पेन जो था वो वैसा ही था। अगला, इंडियन नेवी ने अपनी लॉजिस्टिक कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए क्या किया है कि हाल फिलहाल एक एयर ड्रॉप कंटेनर का सक्सेसफुल परीक्षण किया, सफल परीक्षण किया है। तो उसका नाम क्या है? आंसर है सहायक। आंसर है सहायक। इसका टेस्ट पेलोड कितने का है? 50 kg। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा कि अब जहाज तक जो भी स्पेयर पार्ट्स पहुंचाने होंगे उसके लिए जहाजों को वापस यहाँ पे बंदरगाह पे आने की जरूरत नहीं है। दे डोंट नीड टू कम बैक टू द पोर्ट्स टू गेट दोज थिंग्स। ठीक है, दे कैन बी डिलीवर्ड इट इजिली। इसको आसमान से डायरेक्टली गिराया जा सकता है पानी में और जहाजों तक इसको पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, तो इसका ट्रायल सक्सेसफुल रहा है। कौन कौन, किसने किसने डेवलप किया है? NSTL नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी और ADE एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, ये जो DRDO का विंग है इन लोगों ने डेवलप किया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इंडियाज फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क हैज बीन एस्टैब्लिश्ड? इनमें से किन स्टेट्स में इंडिया का पहला पॉलिनेटर पार्क स्टैब्लिश किया गया है? आंसर है उत्तराखंड। कहाँ किया गया? देहरादून में, हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट, नैनीताल में, सॉरी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में। ठीक है, अगला, इनमें से कौन कौन से लोगों को टेस्ला इंडिया मोटर्स एंड इसमें डायरेक्टर्स बनाए गए हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर इन टेस्लाज न्यूली इंडियन रजिस्टर्ड सब्सिडियरी टेस्ला इंडिया मोटर्स एंड एनर्जी? इनमें से कौन कौन है? आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों टेस्ला इंडिया मोटर्स की जो नई सब्सिडी आ रही है उसमें इन लोगों को रखा गया है। ठीक है, टेस्ला ने कहाँ रजिस्टर किया है अपना ऑफिस? बेंगलोर में। ठीक है, तो ये सेल से शुरू करेगी, उसके बाद असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग का काम लेटर फेज में होगा। ठीक है, इनमें से कौन सी म्युनिसिपैलिटीज ने UNDP इंडिया के साथ कोलैबोरेट करके इंडिया का पहला सोशल इंपैक्ट बॉन्ड लॉन्च किया है? ठीक है, आंसर इज पिंपड़ी चिंचवाड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पुणे। ठीक है, पुणे। अगला, इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड? ठीक है, किसको अपॉइंट किया गया है? आंसर इज सोमा मंडल। ठीक है, सोमा मंडल को अपॉइंट किया गया है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन। उसके बाद रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, आंसर है सुनीत शर्मा। ठीक है, इनको ना केवल चेयरमैन बल्कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी अपॉइंट किया गया है रेलवे बोर्ड का। रेलवे बोर्ड किसके अंदर, एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, दे कैन आस्क यू आल्सो कि रेलवे बोर्ड कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ, आंसर विल बी रेलवेज। ठीक है, सिंपल। अगला,
हॉर्टिकल्चर को बढ़ाने के लिए हाल फिलहाल किसी स्टेट में एशियन डेवलपमेंट बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10 मिलियन का प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग साइन किया है, ठीक है, ताकि उस स्टेट में किया जाए। कौन सा स्टेट है, जल्दी आइडेंटिफाई कीजिए, ठीक है। आंसर इज हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है, हॉर्टिकल्चर को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक में $10 मिलियन का एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। टू कैप्चर द एक्सटेंट ऑफ डिजिटाइजेशन, डिजिटाइजेशन के एक्सटेंट को उसको कैप्चर करने के लिए क्या किया है, आरबीआई ने माने कंपोजिट डिजिटल पेमेंट इंडेक्स लॉन्च किया। आरबीआई हैज लॉन्च्ड अ डिजिटल पेमेंट इंडेक्स टू कैप्चर द एक्सटेंट ऑफ डिजिटाइजेशन ऑफ पेमेंट्स अक्रॉस द कंट्री। उनमें कितने पैरामीटर्स हैं, हाउ मेनी पैरामीटर्स इन देयर इन दैट इंडेक्स, उस इंडेक्स में कितने पैरामीटर्स हैं, आंसर दीजिए जल्दी। 5, आंसर है 5, ठीक है। अगला, इनमें से कौन सी कंट्री ने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट लॉन्च किया है। तो आपको अच्छे से पता है कि मलाला यूसुफजई का हाल पाकिस्तान में क्या हुआ था। तो आपको अगर नहीं भी पता तो आप ट्राई कर सकते हैं सोचने का। पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं, अफगानिस्तान में भी नहीं, क्या इंडिया में हुआ है, इंडिया में होता तो पता आपको चल जाता, नरेंद्र मोदी जी खुद लॉन्च करते। आंसर इसका यूएसए है। अगर ये नहीं भी आता तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके इसका आंसर ढूंढ सकते थे, ठीक है। अगला, सैदिर जाफरोव, ठीक है, हैज रिसेंटली बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, किसके, आंसर है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान के प्रेसिडेंट बने हैं और किसको हराया है, अदा खान मदुमरव को हराया है, जिसको एक लैंडस्लाइड विक्ट्री कही जा सकती है। इनको 7% से भी कम वोट मिला है, ठीक है, और ये 52 साल के हैं। इन्होंने 79% ऑफ द टोटल वोट जो मिले उनमें से 79% वोट इनको मिले हैं। इनमें से हाल फिलहाल किसी ने सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के पद से रिजाइन किया है। हु अमंग द फॉलोइंग रिसेंटली रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, आंसर इज, जल्दी बताइए, दुष्यंत ए दवे। ये पहले फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके थे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। इन्होंने 14 जनवरी को तत्काल प्रभाव से रेजिग्नेशन दिया, इमीडिएट अफेक्ट, तत्काल प्रभाव, ठीक है। एससीबीए क्या है, ये इंडियन बार एसोसिएशन है, कंप्राइजिंग द प्रैक्टिसिंग लॉयर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है। ये बुक किसने लिखी है, जल्दी बताइए। द पॉपुलेशन मिथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया हैज बीन ऑथर्ड बाय, द आंसर इज एस.वाई. कुरैशी, ठीक है। एस.वाई. कुरैशी ने ये बुक लिखी है। ये क्या करता है, ये इंडिया के डेमोग्राफिक्स को एक रिलीजन पर्सपेक्टिव और इस सब के बारे में ये मेंशन करता है। और जो 2 बेसिक मिथ हैं कि इस्लाम फैमिली प्लानिंग के अगेंस्ट है और मुस्लिम रेट ऑफ ग्रोथ, ये दोनों मिथ को ये तोड़ता है, ठीक है। अगला, इनमें से कौन सा हेड करेगा एम्पावर्ड पैनल जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है ताकि कोविड-19 वैक्सीन का एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सके। हु विल हेड द एम्पावर्ड पैनल फॉर्म बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन, द आंसर इज आर.एस. शर्मा, ठीक है, आर.एस. शर्मा जी करेंगे, ठीक है। कितने मेंबर की टीम होगी, 10 मेंबर की टीम होगी जो कि हेड करेंगे आर.एस. शर्मा। ये कौन थे, ये फॉर्मर ट्राई चीफ रह चुके हैं। और इसमें 10 मेंबर कमिटी में टॉप ऑफिशियल्स रहेंगे हेल्थ मिनिस्ट्री के और यूआईडीआई के। यूआईडीआई क्या है भैया, आधार कार्ड वाले, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हाल फिलहाल आर्मी डे सेलिब्रेट किया गया था, कितने तारीख को मनाया जाता है आर्मी डे, आंसर क्या है इसका, जनवरी 15, ठीक है। क्यों जनवरी 15 को हम लोग आर्मी डे मनाते हैं, क्योंकि, और जनवरी 15 कौन सा था आर्मी डे, ये भी बोलता है कौन सा एडिशन होता है, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आपसे। ये 73rd एडिशन था और ये हर साल जनवरी 15 को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो फील्ड मार्शल थे हमारे के.एम. करियप्पा जी, ये पहला कमांडर इन चीफ बने थे 15 जनवरी के दिन। और उन्होंने किससे लिया था कमांड, जनरल फ्रांसिस बुचर से, ठीक है, जो लास्ट ब्रिटिश कमांडर थे 1949 में, ठीक है। कहाँ हुआ था सेलिब्रेशन, दिल्ली पैरेड ग्राउंड एमिड कोविड-19 प्रोटोकॉल्स, ठीक है। इन फर्स्ट स्वार्म ड्रोन सिस्टम मनाया गया, ठीक है, ये परेड में फीचर हुआ। तो ये आज के लिए धन्यवाद। आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आप पैसेज फॉर्मेट में और ज़्यादा जानना चाहते हैं या आप MCQs में और ज़्यादा करंट अफेयर्स पसंद करेंगे, प्लीज़ लेट अस नो।
Thank you for today.